Good afternoon, everyone. Welcome to the session on moving your accounts online with Real Books. I will quickly thank everyone for joining in, taking out your valuable time in the afternoon on this Saturday. I will also would like to thank all our channel partners, all the friends who promoted this event. We are grateful for your contributions. We are grateful for your working with us. Thank you very much. I will also introduce myself. We are seeing each other for the first time, a lot of us. My name is Neeraj Kumar Jain, and I have been, by education, I'm a chartered accountant, a third generation CA. I'm a son of CA Pradeep Kumar Jain, and मेरी company की नाम है Jain and Company. So I'm a third generation chartered accountant, and at Real Books, I look after technology and operations. That's what I do in Real Books. All right. So this is about me. We'll quickly jump into our session today. I will share my screen. Okay. Can you see my screen? Yes. Okay. Thank you. So moving your accounts online with Real Books. So we're going to talk about the world is changing, situations are changing. Nobody had ever thought कि हम लोग ऐसा situation में आएंगे जहाँ पे हमको सब कुछ remotely काम करना पड़ेगा. And we need to adapt. Everybody is now looking to adapt to the situation. We don't know when this COVID thing will get over, when things will normalize. So the first question aata hai, why online? And this perhaps last 2-3 months have really answered a lot of our questions. ऑनलाइन से काम जो लोग ऑनलाइन थे लास्ट 2-3 महीने में, जिनकी बिजनेसेस ऑनलाइन थी, उनकी बिजनेसेस तो होती रही. जिनकी कंप्लीटली बिजनेसेस ऑफलाइन थी, they faced a challenge that they had never seen before, a complete stop to a sale. Some of our clients are saying एक पैसे की सेल नहीं हुई है. We have some of our clients who are selling cars and dealers है, डीलरशिप है उनकी कार्स की, एक भी गाड़ी बिकी नहीं है, मारुति की, Hyundai की नंबर्स है ये. So this has never happened and nobody could have ever imagined this to happen. So today, being online, I feel is must. ये कोविड कब खत्म होगा, इसकी वैक्सीनेशन कब आएगी, none of us know, but business needs to start. So and जितना कम रिस्क ले हम लोग ऑफिस में आने से, जितने कम लोग को ऑफिस में बुलाएंगे, उतना रिस्क कम है स्प्रेड होने का. So this is a great time to embrace online technologies to do business and to connect with people. And Real Books can play a great role over here. Real Books has been designed to work in an online setup. It has been designed for that. We have 10 years of experience in online accounting and outsourcing services. We have 7,000 companies already registered on our website, on our application. We have the skills and the tools to take you to the cloud. आपके अगर बुक्स टैली में हैं, आपकी कोई और सॉफ्टवेयर में अगर बुक्स हैं, हम उनको इजीली माइग्रेट कर सकते हैं रियल बुक्स पे, और हम आपका बिजनेस को इजीली सपोर्ट कर सकते हैं विद एन ऑनलाइन अकाउंटिंग सिस्टम. I will also like you to, I will introduce to you my partner, Anurag Mohta. We are two people who are running this company for the past 10 years. We are a team of 67 people today. We have channel partners in Bombay, Delhi, and Bangalore. We kept a low profile so far. हम लोग में marketing की नहीं. We are more of operations people and techie people. And Anurag is the one who looks after the sales, the finances, and the marketing. Okay, so I'll give you a background of Anurag, my partner. He is from IIM Lucknow. He has worked in investment banking for 7 years in Bombay and in London. And when he came back in the year 2012, that was another period of crisis. We said it's a good time to start something on our own. And that is where 2010, 11, 12 में हमने अपने business को, ये formative years थे हमारे वो, हमने software की coding की, हमने businesses को अपनी application दी, and we've been busy since then.
Okay, so why real books? Why online? Why real books? सबसे बड़ा एडवांटेज जो ऑनलाइन होने का है कि आपकी बुक्स कहीं से भी कभी भी एक्सेस किए जा सकते हैं, एंड दैट इज अ बिग कंफर्ट। आप घर पे बैठ के बुक्स को देख सकते हैं, रात में बैठ के बुक्स को देख सकते हैं, आप अपने सीए को उनके ऑफिस से बैठ के बोल सकते हैं कि मेरे बुक्स को रिव्यू करके थोड़ा सा फीडबैक दे दो हमारे को। और एक नया एक अपॉर्चुनिटी दिखता है यहाँ पे, जो हम इसकी बात करने वाले हैं, वो है कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट की, जहाँ पे अगर आपके पास अकाउंटेंट नहीं है तो आप अपने सीए के आर्टिकल को बोल सकते हैं कि आपके पास अगर लड़का है दो चार एंट्री करने के लिए तो क्या मेरे को हेल्प कर सकता है। तो पूरा कोलैबोरेशन एनवायरनमेंट में भी काम किया जा सकता है इस सिस्टम में। दैट इज द बेस्ट पार्ट। आवर यू आर ऑलवेज योर बुक्स आर ऑलवेज एक्सेसिबल टू यू। हमारी एक मोबाइल ऐप है जिसको आप इजीली यूज कर सकते हैं टू गेट डेटा, टू गेट पेबल्स रिसीवेबल्स ऑन दैट। कंसोलिडेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस आर डन एट रियल टाइम। ऑब्वियसली नीडलेस टू से अगर ऑनलाइन सिस्टम है तो हमारी ब्रांच अकाउंटिंग की जो फीचर है उससे आप कंटिन्यूअसली रियल टाइम पे आप कंसोलिडेशन कर सकते हैं। कंप्लायंसेस में हम कर रहे हैं बैंकों से इंटीग्रेट। अभी फाइल पुल की सिस्टम है, जीएसटीआर 2A की पूरी फाइल्स अपलोड हो जाती है। हम लोग बीच में काम कर रहे थे इसको ऑनलाइन इंटीग्रेट करने का, एक बार का वो होल्ड किया हुआ है। वी कैन ऑलवेज गो इन दैट डायरेक्शन। आपकी डेटा हम लोग एक्सटेंसिव कंट्रोल फीचर्स देके रखे हैं आपको, क्योंकि ऑनलाइन है तो एक रिस्क रहता है कि ऑनलाइन है तो कोई भी मेरा बुक्स को एक्सेस कर सकता है क्या। तो हमारे सिस्टम में एक मल्टी टेयर्ड सिक्योरिटी फीचर्स है, ताकि आप उसी उन लोग को उतना ही एक्सेस दे लोगों को जितना आप एक्सेस देना चाहते हैं। तो यहाँ पे एक लेवल ऑफ कंट्रोल आपको दिया गया है आपके हाथों में। सो दैट इज व्हाट रियल बुक्स हैज टू ऑफर इन द स्पेस ऑफ अकाउंटिंग। नाउ एक और क्या खास बात किया है हमने रियल बुक्स में कि हमने कोशिश की है कि जो यूजेबिलिटी है सिस्टम की वो टैली जैसी रहे, ताकि आपके जो डेटा एंट्री लोग हैं उनको ट्रेनिंग कर्व ज्यादा हाई नहीं रहेगा। पीपल कैन एक्सेस द बुक्स एनी टाइम दैट दे वांट, and the data entry guys can do data entry without having to learn new features। जो जो टैली में लोग एंट्री कर रहे हैं उसको रियल बुक्स में एंट्री करने में तकलीफ नहीं होती है। हमारे जितने भी क्लाइंट्स ऑन बोर्ड आए हैं उनकी ट्रेनिंग हमारे को डेटा एंट्री की ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ी है। हमने कोशिश किया है कि लोगों के लिए वहां पे लाइफ इजी किया जाए। सो सब अब हम लोग इसको ग्रेजुएट एक एक पॉइंट पे जाते हैं डिटेल में, और थोड़ा सा आपको मैं स्क्रीन के फीचर्स दिखाऊंगा। हम लोग हाई लेवल यहाँ पे डिस्कशंस कर रहे हैं सो दैट आपको एक आइडिया लगे कि हमारे सिस्टम में क्या क्या चीज पॉसिबल है दिखाना आपको, और क्या क्या चीज की पॉसिबिलिटी है। एंड आपके अगर और क्वेश्चंस होंगे वी विल कीप अ विंडो ऑफ 15 मिनट्स लेटर इन द सेशन, जहाँ पे आपकी क्वेश्चंस हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। मीनवाइल अगर आपको और भी कोई क्वेश्चंस आ रही है दिमाग में ड्यूरिंग द सेशन, आप चैट पे क्वेश्चन कर सकते हैं। चैट में मेरे पार्टनर हैं, वो आपको जवाब दे देंगे, मैं तो ऑब्वियसली जवाब नहीं दे पाऊंगा। एंड सो आपको म्यूट किया गया है, एंड वो 15 मिनट के विंडो में मैं वापस से म्यूट को खोलूंगा जहां पे आपके क्वेश्चन हम लाइव लेके आपको लाइव आंसर्स दे सकेंगे। सो बेयर विथ अस, यू विल नॉट हैव एक्सेस टू ऑडियो इन दिस मीटिंग। यू कैन ऑलवेज चैट एंड राइट टू अस। ऑलराइट, सो सबसे पहला, एक्सेस योर बुक्स एनीवेयर। हम रियल बुक्स को, जैसा हमने कहा, ब्राउजर पे चलता है ये, तो इसमें आपको कोई सिस्टम को डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। आप जैसे जीमेल को अपने कहीं से भी ब्राउजर में जाके आप खोल सकते हैं, रियल बुक्स को भी आप ब्राउजर से कहीं पे भी जाके खोल सकते हैं। तो कोई एडिशनल सॉफ्टवेयर की, बैकअप की, इंस्टॉलेशन की दरकार नहीं है आपको। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, क्या आपको स्क्रीन दिख रहा है हमारा? ओके, तो यहाँ पे अगर मैं लॉग इन करता हूँ, कंपनी का मुझे अकाउंट देना पड़ता है मेरे को अपना, मैंने अपना यूजर नेम डाला, मैंने अपना पासवर्ड डाला, और जब मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ तो लॉगिन हो गई। ये ब्राउजर से चल रही है फायरफॉक्स, एंड आप मल्टीपल कंपनीज को एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पे, और आप कौन से मल्टीपल कंपनीज में कौन से ब्रांच में जाना चाहते हैं उस ब्रांच को भी एक्सेस कर सकते हैं आप। कौन से फाइनेंशियल ईयर की अकाउंटिंग देखना चाहते हैं आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ये सब कुछ क्लाउड पे है, ऑनलाइन है, और ये आपको लॉगिन करने के बाद एक डैशबोर्ड रहता है जहाँ पे आपको समरी दिखता है आपका, आपकी सेल्स कितनी है, इनकम एक्सपेंस कितनी है, एक्सपेंसेस डिटेल्स कितनी है, कैश एंड बैंक की बैलेंसेस कितनी है। एक एक ग्लांस में आपको एक आपका कंपनी का डेटा दिख जाता है। सो दिस
Now this can be accessed from anywhere. आप घर से बैठ के भी इसको पूरी एक्सेस कर सकते हैं। ब्राउजर पे अवेलेबल है, एट द सेम टाइम ये हमारे मोबाइल ऐप पे भी अवेलेबल है। तो देयर इज अ क्लाइंट जो हमारे सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, वो बोलते हैं कि आपका ऐप बड़ा मजेदार है, क्योंकि हम जब भी ट्रैवल करते हैं, कस्टमर से मिलते हैं, तो मुझे तुरंत कितना पेएबल है, रिसीवेबल है, पहले दिख जाता है, नंबर्स मेरे दिमाग में फ्रेश रहता है। और उस ऐप से आप बिल्स को शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पे अपने क्लाइंटों से। तो अगर कोई इनवॉइस शेयर करनी है, कोई आपको लेजर शेयर करनी है, कोई आपको लेजर की बैलेंसेस शेयर करनी है, आपको कोई लेजर का रिपोर्ट शेयर करना है, तो आप ऐप से डायरेक्टली देन एंड देयर अपने कस्टमर से, वेंडर से आप शेयरिंग कर सकते हैं, अगर आप उनसे मीटिंग पे जा रहे हैं। इफ यू आर ऑन द गो, आप मोबाइल ऐप से लोग अपने बुक्स को रिव्यू कर सकते हैं। अभी मोबाइल ऐप में हमारे डेटा एंट्री की फैसिलिटी नहीं है, बट आपकी सारे रिपोर्ट्स सारे अवेलेबल है मोबाइल ऐप पे। एक और एनीवेयर का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि क्योंकि हम कहीं से भी लॉगिन कर सकते हैं अपने आप, जैसे हमने कहा, आप अपने सीएस को आउटसोर्स कर सकते हैं बुक्स को। आपकी फैक्ट्रीज और ब्रांचेस अगर चल रहे हैं अलग अलग लोकेशन पे, तो आप उनको भी इंटीग्रेट कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से। कोई भी एडिशनल इंस्टॉलेशन की आपको दरकार नहीं पड़ेगी। आपकी अगर रिमोट लोकेशन पे चाय की बागान है आपकी, और चाय के बागान के ऊपर आपकी कोई छोटी सी, आपकी वहाँ पे ऑफिस चल रही है, वहाँ पे क्या काम चल रहा है, आप उसको यहाँ से लॉग इन करके देख सकते हैं। सो कोई एडिशनल टेक्नोलॉजी की, डेटा ट्रांसफर की, सेटअप की दरकार नहीं पड़ती है। दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ यूजिंग ऑन द ब्राउजर। रियल बुक्स कैन बी एक्सेस्ड एनी टाइम। आप इसको दिन में, रात में, 365 डेज, 24 आवर्स, 7 डेज, 7 डेज अ वीक, 365 डेज अ ईयर, आप इसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, रात में, दिन में, कभी भी चलेगा। काफी सिस्टम्स के चैलेंज क्या होते हैं जो ऑफिस में इंस्टॉल्ड होते हैं, अगर ऑफिस आपकी रात में बंद रहती है तो सिस्टम भी बंद हो जाती है, उसको एक्सेस नहीं कर पाते हैं हम। एक्सेप्ट फॉर लार्ज स्केल सिस्टम, सैप, नाविजन, बाकी सब सिस्टम को हमको ऑफिस में, जब ऑफिस में कोई रहेगा बंदा, सर्वर चालू रहेगा, तो ही हम उस सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकेंगे, उसके बिना एक्सेस पॉसिबल नहीं है। नहीं तो लोग क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर का बैकअप लेके जाते हैं अपने साथ। बैकअप लेके जाएंगे तो उसको एंट्री करेंगे तो सिंक्रोनाइजेशन में चैलेंज आती है। तो विद रियल बुक्स आप कहीं पे भी बैठे हैं, आप रात में, दिन में, आप सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। हमारी रियल बुक सर्वर AWS पे चलती है। तो Amazon वेब सर्विसेज आज के दिन पे नंबर 1 कंपनी है क्लाउड सर्विसेज, सर्वर्स प्रोवाइड करने के लिए। तो सर्वर्स की हैंडलिंग हमारे पास नहीं है। उससे बहुत बड़ा हमारा एक तो स्किल सेट का रिक्वायरमेंट नहीं रहता है, जहां पे हमको फिजिकल सर्वर्स को मैनेज करना पड़े, डेटा सेंटर को मैनेज करना पड़े। सारा पूरा का पूरा हमारा डेटा सेंटर AWS के क्लाउड सर्वर्स पे चलता है। बेस्ट पार्ट अबाउट AWS क्लाउड सर्वर्स इज कि उसमें बैकअप्स को आप बहुत ब्यूटीफुली ऑटोमेट कर सकते हैं। तो हमारी सिस्टम रेगुलरली सिंक्रोनाइज रहती है, कंटिन्यूअस डेटा सिंक्रोनाइज होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। एंड दो सर्वर्स ऑलवेज पैरेलली चलती है। आप डेटा का बैकअप लेके आप डेटा को क्लाउड पे रिस्टोर कर सकते हैं। एवरी डे एंड पे रात में 12 बजे हमारी सिस्टम एक फुल डेटा की बैकअप लेके सर्वर पे डाल, एक रिमोट लोकेशन पे डाल देती है। सो द डेटा इज ऑलवेज सिक्योर्ड। दैट्स द बेस्ट पार्ट। आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं और डेटा की सिक्योरिटी ऑलवेज रहेगी। एक और एडवांटेज है हमारे साथ, हमारा AWS के साथ काम करने का, वो ये है कि आपकी बिजनेस ग्रो करेगी, जैसे वैसे हमारी सॉफ्टवेयर भी ग्रो कर सकती है। तो हमारी सिस्टम थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, लैक्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस को हैंडल कर सकती है। इट कैन हैंडल मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस एट द सेम टाइम, एंड आपको वही स्पीड मिलेगा डेटा एंट्री के लिए। टैली में ऑब्वियस नॉर्मल चैलेंजेस क्या आता है कि थोड़ी सी भी बुक्स अगर हैवी हो जाए तो थोड़ा सा रिस्पॉन्स स्लो हो जाता है। यहाँ पे ये चैलेंज नहीं आएगा आपको। ओके। एंड सबसे इंपॉर्टेंट फीचर हम लोग का है अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑन द क्लाउड। आपके डॉक्यूमेंट्स ऑलवेज क्लाउड पे रह सकते हैं, तो एक डॉक्यूमेंट्स की सेफ्टी आ जाती है। गवर्नमेंट कहता है कि आपको अपने बुक्स को, अपने डॉक्यूमेंट्स को कम से कम 8 साल तक मेंटेन करना चाहिए। अब वो डॉक्यूमेंट्स को हमको बाइंड करके एक जगह पे गोडाउन में रखना पड़ता है, और कभी कोई डॉक्यूमेंट को रेफरेंस करना पड़े, ढूंढना पड़े, तो हालत खराब हो जाती है। अगर कोई आईटी की हमारी रिक्वायरमेंट आ गई, कोई हमारा स्क्रूटनी पे केस खुल गया, तो डॉक्यूमेंट को ढूंढते फिरो कि डॉक्यूमेंट कहाँ मिलेगा हमारे को। तो यहाँ पे मैं आपको एक स्क्रीन दिखाना चाहूंगा जहाँ पे मेरी डॉक्यूमेंट फीचर की अवेलेबिलिटी है। आई वुड लाइक टू शो दिस टू यू। तो ये हमारा लेजर रिपोर्ट है। लेजर रिपोर्ट में मैंने एक लेजर रिपोर्ट खोल के रखा है आपके लिए, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का। ये 1 महीना का रिपोर्ट है हमारा।
इस महीना का रिपोर्ट में अगर हम देखना चाहें बिल को, तो हम यहाँ पे खोल के इसको एंटर करेंगे, तो लेफ्ट में आपको डॉक्यूमेंट की अटैचमेंट दिख जाती है। इस तरह से डॉक्यूमेंट्स ऑलवेज आपके साथ एंट्री के साथ अटैच रहते हैं। लेफ्ट में आपकी डॉक्यूमेंट्स है, राइट में आपने एंट्री कर लिया, और फ्यूचर में कभी इस डॉक्यूमेंट को रेफर करना पड़ा तो आपने एंट्री एडिट किया और आपको डॉक्यूमेंट दिख गया। आप लेजर रिपोर्ट से डायरेक्टली डॉक्यूमेंट को खोल के देख सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो राइट पे आपको डॉक्यूमेंट दिखाई देगा आपको। तो इसका एडवांटेज क्या होता है कि कभी भी बुक्स को रिव्यू करना पड़े तो डॉक्यूमेंट्स को ढूंढता नहीं फिरना पड़ेगा हमारे को। सारी के सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे एंट्रीज के साथ सामने दिखती है। और अटैचमेंट भी ऐसा नहीं है कि आपको डाउनलोड करके देखना पड़े, आप क्लिक करेंगे ब्राउजर पे ही आपको पूरा अटैचमेंट दिख जाता है। ऑडिट करना बड़ा आसान हो जाता है इसके साथ। अगर आप अपने सीएस को अपना बुक्स देते हैं और बोलते हैं ऑडिट करने के लिए, तो सीएस अपने घर पे बैठ के, ऑफिस से बैठ के डॉक्यूमेंट को देख देख के यहाँ पे ऑडिट कर सकते हैं। सीएस के लिए एक और अच्छी फीचर बनाई गई है यहाँ पे, जहाँ पे आप कलर कोडिंग कर सकते हैं, ग्रीन, रेड, खाली 1 2 3 टाइप करना है आपको, एंड आपका यहाँ पे आप मार्किंग कर सकते हैं कि मेरा ये ऑडिट हुआ कि नहीं, मेरा यहाँ पे काम हुआ कि नहीं। So some features have been made so that it's easy for people to use on a remote location. Now, this is not the story that I wanted to tell you. इसमें सबसे एक और बहुत important feature क्या है, आप इसको years back पे any time is not just कि हम दिन में रात में देख सकते हैं, any time also means क्या हम past के records को देख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखना चाहेंगे तो 1/3/18 2 साल पहले के अगर आपको डॉक्यूमेंट देखना चाहते हैं तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो 2 साल पहले के सही डॉक्यूमेंट यहाँ पे अटैच्ड है। मैं समझ लीजिए मई की एंट्री देखना चाहता हूँ मैं, तो मई में अगर मैं आप एंट्री देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो उप्स सॉरी यस अक्रॉस द ईयर एंट्री लॉक्ड है। तो आप अगर नोटिस करोगे तो वाउचर डेट क्योंकि पहले साल की है तो आप फाइनेंशियल ईयर जब तक चेंज नहीं करोगे इसको एडिट नहीं कर सकते हो। ये सिक्योरिटी फीचर है हमारी, बट डॉक्यूमेंट आपको यहाँ से दिख जाते हैं। देखिए आप यहाँ से डॉक्यूमेंट को यहाँ पे देख सकते हैं, और एक और तरीका से आप देख सकते हैं, जहाँ पे पूरी एंट्री देखना चाहें तो आप वी करके व्यू मोड में जाके, यहाँ पे आप एडिट नहीं कर सकते, आप व्यू मोड में जाके आप डॉक्यूमेंट को पूरी देख सकते हैं। ये 2 साल अप्रैल 2018 की एंट्री है ये, और आप उसके डॉक्यूमेंट्स को पूरे साल के अगर आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके रखे हैं तो पूरे साल के डॉक्यूमेंट्स को आप रेफर कर सकते हैं यहाँ से। और ये सब इनबिल्ट है, रियल बुक्स की फीचर में, स्टैंडर्ड फीचर में इनबिल्ट है। इसका एक्स्ट्रा रुपया नहीं लगता है आपका, इसका कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना पड़ता है आपको। इट इज पार्ट ऑफ द पैकेज। ठीक है, so this is the feature that we have on uploading of documents, and that those documents can be accessed anytime and from any year. So ये बड़ा एडवांटेज हो जाता है। अगर मेरे को गवर्नमेंट का कोई रिक्वायरमेंट आया तो आप डॉक्यूमेंट्स को तुरंत प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं। सो यहाँ पे एक और स्टोरी है हमारे क्लाइंट की। सो इसी समय हमारा एक क्लाइंट है जो लॉकडाउन में उनको कोई बैंक में कोई डॉक्यूमेंट्स, बैंकों ने कोई डॉक्यूमेंट मांगी, उनकी सीसी क्रेडिट लिमिट ली गई है, एंड अब वो डॉक्यूमेंट इस लॉकडाउन में गवर्नमेंट सब कुछ लॉक करके रखा हुआ था, एंड वो अभी जस्ट टैली से मूव आउट कर रहे थे वो, तो उनके पास टैली की बैकअप भी थी, रियल बुक से पैरेलली चल रहा था उनका। तो वो टैली खोल के उन्होंने फिगर्स तो निकाल दिए क्योंकि आप टैली के बैकअप को लेके अपने साथ घूम सकते हो, और जब बैंकों ने कोई डॉक्यूमेंट्स मांगा वो फंस गए, या वो ऑफिस से डॉक्यूमेंट्स कैसे लेकर आए। सडनली उनको रियलाइजेशन आया, अरे हमने तो पिछले 2 महीने से रियल बुक्स में पैरेलल चला के रखे हैं, तो पिछला महीना का डॉक्यूमेंट देखो रियल बुक्स में होगा। और जब उन्होंने रियल बुक्स खोल के देखा तो वाकई में सारे डॉक्यूमेंट उनको मिल गए। तो उन्होंने मुझे चला के फोन किया और बोला कि सर थैंक यू वेरी मच, आपका सॉफ्टवेयर पर बड़ा काम आया, मेरा डॉक्यूमेंट मैंने गवर्नमेंट को और बैंक को टाइमली प्रोवाइड कर दिया और मेरा वो डेडलाइन मीट हो गया। वो डॉक्यूमेंट नहीं तो मैं ढूंढता फिरता कि मुझे कहाँ मिलने वाला था। सो द डॉक्यूमेंट्स आपके साथ अवेलेबल है ऑल द टाइम। ओके, नेक्स्ट क्या एडवांटेज है एक और रियल बुक्स का। ये हमारी बड़ी स्पेशल फीचर है रियल टाइम की, कि आपके बुक्स कंसोलिडेट हो जाते हैं। हमारे रियल बुक्स में अगर मैं आपको दिखाऊं वापस से, तो आप देखेंगे कि हमने हमारी कार डीलर्स की काफी कंपनीज आ रहे हैं हमारे पास, तो आप उनमें आप देखेंगे मल्टीपल सेगमेंट्स है, तो आप सेगमेंट्स को रेफर कर सकते हैं आप, और कोई भी एक सेगमेंट में घुस के उसकी एंट्री कर सकते हैं। इसका एडवांटेज क्या होता है कि आपको अगर कभी कॉलमनर पीएनएल देखना है तो आप देख सकते हैं। तो आपकी हरियाणा की, बंगाल की,
नेक्सा डिवीजन की, मारुति डिवीजन की, या आपकी कंपनी में अगर आपकी कोई ब्रेकअप देना चाहते हैं आप ब्रांचेस की, आप अपनी हेड ऑफिस की, फैक्ट्री 1 की, फैक्ट्री 2 की, इस तरह से आप पीएनएल इंडिविजुअली भी देख सकते हैं और आप कंसोलिडेटेड वे में भी देख सकते हैं। आप यहाँ पे टोटल भी आ जाता है। सो दिस ability to do data entry on branch level and then consolidating in real time up to is on the fly. अब बहुत सारे हमारे कंपनी जो हमारे पास ऑन बोर्ड आए हैं, उन लोग का चैलेंज रहा था कि उन लोग 15-15 लोग, 10-10 लोग को रखते थे। उनकी 70 लोकेशंस की कंपनी है, उन लोग के पास 4 आदमी थे खाली डेटा को कंसोलिडेट करने के लिए। तो जब से उन लोगों ने रियल बुक्स में शिफ्ट किया, तो उनका जो कंसोलिडेशन का 4 आदमी लोग का जो कॉस्ट है वो उन लोग रिड्यूस कर पाए। दे कुड एलोकेट दोस 4 रिसोर्सेज फॉर डूइंग सम अदर वर्क एंड उनको कंसोलिडेटेड रिपोर्ट तुरंत मिलने लग गई। दिस वाज वन ऑफ द यूज केसेस जहां पे आप इमीडिएट कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं अगर आपका ऑफिस स्प्रेड आउट है। एक और एडवांटेज है कि आप जब एंट्री देखना चाहते हैं, तो आप जैसे इसको एंट्री करेंगे तो ड्रिल डाउन है हमारा पूरा। आप परचेज की एंट्री करते हैं ब्रांच लेवल पे, तो इसको हटाते हैं, इसको ओपन करते हैं, तो ये सेगमेंट लेवल पे आपको सेगमेंट वाइज आपको एंट्री यहाँ पे कंसोलिडेटेड दिख जाती है। That's so you can not only see P&L reports branch wise as well as company wise, आपकी लेजर की रिपोर्ट ट्रांजैक्शन लेवल पे भी आप जाके एंट्रीज को कंपनी वाइज एज वेल एज ब्रांच वाइज देख सकते हैं। So that's one of the USPs that our software has, is the ability to do branch accounting. एक और चीज हमने फीचर बिल्डिंग की है, वो है मल्टीपल जीएसटीज हैंडल करने की। तो आप एक ही कंपनी में अगर आपके मल्टीपल जीएसटीज हैं, आप उसको भी हैंडल कर सकते हैं। तो आई विल शो दैट टू यू, मल्टीपल जीएसटीज का। सो सॉरी, यहाँ पे नहीं है ये। सो ये रहा जीएसटीआर रिपोर्ट। ये जीएसटीआर रिपोर्ट में आपकी जीएसटीआर 1 पूरी कंसोलिडेट के अपने आप निकल जाती है डेटा एंट्री से। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे बिजनेस प्लेसेस, आप अलग अलग बिजनेस प्लेस को अलग अलग जीएसटी इन पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, और आप एक एक जीएसटी रिपोर्ट की रिपोर्ट अपने जीएसटी के हिसाब से देख सकते हैं। आप गुड़गांव को क्लिक करेंगे तो गुड़गांव की देख सकते हैं, कोलकाता की देखनी है तो कोलकाता की देख सकते हैं। आप अलग अलग जीएसटी रिपोर्ट को, मतलब जीएसटी वाइज आप एक ही कंपनी में आप सारा काम कर सकते हैं। आपको 4 अलग अलग कंपनी मेंटेन नहीं करनी पड़ेगी जीएसटी वाइज के लिए। So that is another feature that we have. So multiple GST consolidation कर सकते हैं आप मल्टीपल ब्रांचों की कंसोलिडेशन कर सकते हैं। तो कंसोलिडेशन ऑनलाइन जाने से कंसोलिडेशन का जो काम है ना, बड़ा आसान हो जाता है। ऑनलाइन आते ही कंसोलिडेशन इज नो लॉन्गर अ चैलेंज और अ प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड। अगर आप ऑनलाइन हैं तो कंसोलिडेशन उस ऑनलाइन की इनबिल्ट फीचर है, इजी हो जाता है, बिकॉज आपकी सर्वर सेंट्रली लोकेटेड है और आप एक सेंट्रल सर्वर को ब्राउजर के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं। तो इसमें डेटा 2 लोकेशन पे है ही नहीं आपकी, क्योंकि आपके अगर ऑफिस में डेटा होगी और आपकी फैक्ट्री में डेटा होगी तो डेटा 2 जगह सेपरेटली सेव्ड है। अगर आपकी जब 2 डेटा आपको 2 अलग अलग सेव्ड है, तो उसको कंसोलिडेट करना, साथ में लाना विल ऑलवेज बी अ चैलेंज। और जहां पे आपने ये प्रॉब्लम को रूट से सॉल्व कर दिया, इंस्टेड ऑफ हैविंग 2 डेटा योर डेटा इनटू सेपरेट लोकेशंस, आप डेटा को मर्ज करके अगर एक सेंट्रल लोकेशन में रख रहे हैं, तो ये डेटा को साथ में लाना, कंसोलिडेट करना, मर्ज करना, ये सारा प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाता है। सो दैट इज तो यहाँ पे एक और स्टोरी है हमारी। हमारे एक रिसेंटली हमारे क्लाइंट आए हैं जिनकी डीलरशिप कोलकाता में है एंड गुवाहाटी में है। उनकी दोनों जगह पे जीएसटी अलग अलग है। उनको चैलेंज हो रहा था कि उनको पीएनएल साथ में नहीं मिल रहा था, क्योंकि उनको टैली पे 2 अलग अलग अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ रहा था। सो ही वाज स्ट्रगलिंग। सो जब वो रियल बुक्स पे आए तो उन्होंने एक ही कंपनी सेटअप की, 2 ब्रांच क्रिएट कर दिया उन्होंने, उनके 2 जीएसटी आईडीज अलग अलग क्रिएट कर दिए। तो जीएसटी की उनकी फाइलिंग अलग अलग हो गई और एट द सेम टाइम उनकी रिपोर्टिंग पीएनएल वगैरह एक लोकेशन से हो गई। दिस वाज द अनदर एडवांटेज ऑन कंसोलिडेशन। कंप्लायंसेस पे हमने काफी काम किया है। आपकी टीडीएस, अगर आप रूल सेटअप करें तो आपकी टीडीएस को दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि इसके लिए 10% काटना है कि 5% काटना है। वो एंट्री में अपने आप आ जाती है। जीएसटी सारी ऑटोमेटेड है। आप जब लेजर टाइप करते हैं तो जीएसटी की एंट्री क्या रेलेवेंट रेट है वो अपने आप आ जाती है।
आपकी GSTR 1 3B फाइल्स पूरी एक्सपोर्ट हो जाती है यहाँ से, 2A की आपकी पूरी मैचिंग हो जाती है यहाँ पे। तो अगर आप देखेंगे पार्टी वाइज आपकी 2A मैचिंग ऑटोमेटेड है, कितना मैच्ड है, कितना मिसमैच्ड है, सब दिख जाता है, नॉट फाउंड कितना है दिख जाता है। अगर आप ओपन करेंगे तो राइट में मिसमैच मैच स्टेटस दिख जाता है, यहीं से मैचिंग कर सकते हैं, ऑटो मैच कर सकते हैं। तो काफी चीज ऑटोमेटेड किया हुआ है। यहाँ से आप अगर ये मिसमैच है तो क्यों मिसमैच है आप इसको खोल के देख सकते हैं। ओके 1920 की फीचर लॉक है तो उसको व्यू मोड में खोलना पड़ेगा हमारे को, बट this is what is possible, the matching of 2A on compliance level हम लोग का अपने आप होता है, एंड आपको प्रॉपर रिपोर्ट मिल जाता है कि कोई डुप्लीकेट बिल एंट्री तो नहीं हुई है, मिसमैच तो नहीं है, एंड आप उसको हैंडल कर सकते हैं यहाँ से। ओके सो रूल बेस्ड TDS है, GS आपकी compliances हैं, आपके ऑटोमेटेड एंट्रीज हैं, ऑल दिस इज पॉसिबल। Okay, so I'm not going into much into details. I'm trying to give you quickly, सब मैं स्क्रीन खोल के रखा हूँ ताकि आप लोग का वैल्यूएबल टाइम वेस्ट ना हो और आपको एक फील भी मिल जाए सिस्टम की। एंड वी विल ओपन अ क्वेश्चंस टू Q&A। आपको डेमोज अगर आपको रिक्वेस्ट करना है डिटेल डेमो, काइंडली गेट इन टच विद अस, वी कैन ऑलवेज गिव यू अ डिटेल डेमो ऑन द सिस्टम एज वेल। Now this is something which is very close to my heart, collaboration. Now ये एक नया अपॉर्चुनिटी ओपन होता है हमारे पास जैसे ही हम दो फीचर को ध्यान में रखते हैं। पहला फीचर ऑनलाइन होने का। ऑनलाइन होने से जैसे हमने कहा आप सॉफ्टवेयर को कहीं भी और कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। यू कैन एक्सेस द सॉफ्टवेयर एनी टाइम एंड एनीवेयर। नाउ एनीवेयर एनी टाइम में हमने डॉक्यूमेंट अपलोड की फीचर दिखाई थी आपको। नाउ जब जब डॉक्यूमेंट आपके सिस्टम पे रहता है, क्योंकि सारी की सारी एंट्री सोर्स डॉक्यूमेंट से होती है आपकी, और आपकी जब सोर्स ही ऑनलाइन पड़ी हुई है, सडनली एक नया विंडो खुलता है आपके दिमाग में कि सारा अकाउंटेंट्स का मेरे ऑफिस में बैठना है उसको। अगर मेरी डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन है तो क्या मैं अपने डेटा एंट्री के काम किसी को आउटसोर्स कर सकता हूँ? क्या मैं CAs को इन्वॉल्व कर सकता हूँ? क्या मैं टैक्स एक्सपर्ट्स को बोलूं कि आप अपने ऑफिस से ही मेरे को हेल्प दे दीजिए? सडनली कोलैबोरेशन विद एक्सपर्ट्स बड़ी इजी हो जाती है, क्योंकि एक्सपर्ट भी अगर आपको कोई चीज की एडवाइस देंगे तो वो आपके बुक्स को देखना चाहेंगे और आपके डॉक्यूमेंट्स को देखना चाहेंगे। तो ये डॉक्यूमेंट्स आने से ऑन द क्लाउड आप एक आउटसोर्सिंग की एक नई अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाती है फॉर CAs एज वेल एज फॉर बिजनेसेस। बहुत लोग स्ट्रगल करते हैं, डेटा एंट्री के लोग अच्छे नहीं मिलते हैं, अकाउंटेंट्स अच्छे नहीं मिलते हैं, फाइनेंस एक्सपर्ट्स अच्छे नहीं मिलते हैं। तो ऑलरेडी काफी लोग हाइब्रिड मोड में काम करते हैं जहाँ पे डेटा एंट्री करते हैं लोग और फिर CA को अपनी टैली की बैकअप भेजते हैं, CA को बुलाते हैं उनसे अपने बुक्स पे गाइडेंस लेने के लिए। बट अगर आप इमेजिन करें अगर CAs खुद ही बुक्स को मैनेज करें, उनके लोग डेटा एंट्री के लोग को हायर करके उन लोग डेटा एंट्री करवाएं और क्लाइंट्स को एक्सपर्ट ओपिनियंस दें, प्रोफेशनली बुक्स को मैनेज किया जाए, तो बिजनेस को समझ में आएगा कि सडनली हमारे को एक बंदा को ऑफिस में रखना नहीं पड़ेगा। हमने अपने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने CA को दे दी है। और CAs नॉर्मली हम CAs पे पूरा ट्रस्ट करते हैं, सारा टैली का बैकअप हमको इजीली देते हैं, अपने बुक्स को उनको इजीली ओपन करते हैं। तो अगर कोई CA हमारा बुक्स को हैंडल करता है तो उससे और बड़ी और उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और CA को जब एक प्लेटफॉर्म मिल जाए, एक अच्छा टूल मिल जाए तो वो अपने क्लाइंट को अच्छा सर्विस दे सके, तो एक रेवेन्यू की भी एक नई अपॉर्चुनिटी ओपन होती है। इट्स अ विन विन। नाउ अगर हम बिजनेस एक बंदा को हायर करता है तो आप उसके स्किल पे डिपेंडेंट है। अगर आप आउटसोर्स करते हैं तो CA के पास उनकी खुद की स्किल है, प्लस उनके पास 10 लोग होंगे जो अलग अलग स्किल के होंगे। तो सडनली अगर कोई काम को सॉल्व करने के लिए आपको एक एक्सेल एक्सपर्ट चाहिए, तो आपके अगर ऑफिस में एक्सेल एक्सपर्ट नहीं है, हो सकता है कि आपके CA के ऑफिस में एक्सेल एक्सपर्ट है जो आपके एक रिपोर्ट को इजीली बना के दे सकता है आपको। कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट में आते ही बहुत सारे विंडोज ओपन हो जाते हैं। एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे हमारी कंपनी है एस दीक्षा लर्निंग बोल के, उनकी 50 लोकेशंस की उन लोग की स्टूडेंट रिसीट की काम है। एंड सेम चीज हमारे से संजय सराफ भी हमारे साथ क्लाइंट हैं, उनकी भी 90 लोकेशंस पे उनकी कलेक्शंस होती थी एंड रिसीट्स होती थी। तो वो हमसे एक स्पेसिफिक हेल्प मांगे हमारे से कि आप हमारा BRS कर दीजिए। हमारा BRS हमारे लोग नहीं कर पाते हैं, इतनी ट्रांजैक्शन हमारे बुक्स में हिट करती है कि आप मेरे को BRS में और सपोर्ट दे सकते हैं क्या। तो एक क्लाइंट ने हमारे को जो एस दीक्षा लर्निंग ने पूरी BRS की जो प्रोसेस है, केवल BRS के प्रोसेस हमको आउटसोर्स करके रखे हैं उन लोग, और हमारे को पूरी टेक्नोलॉजी पार्टनर बना के रखे हैं उन लोग।
एंड बाकी सारा काम उन लोग अपने घर में खुद अपने अकाउंट्स को खुद मैनेज करते हैं। एसएससीआई ने हमारे को संजय सराफ इंस्टीट्यूट ने हमारे को अपना बुक्स दिया और वो बोले कि मेरे को पीएनएल रिसीवेबल कभी नहीं मिलता, मेरे को मेरे 90 लोकेशन से रिसीवेबल क्या है, क्योंकि उन लोग कुछ भी जब रुपया जमा करते हैं बैंकों में डायरेक्ट जमा हो जाती है, स्टूडेंट्स रुपया डायरेक्ट जमा कर देते हैं, हमको समझ में नहीं आता है, मेरे बंदे नहीं सॉल्व कर पाते हैं कि मेरे एट एनी गिवन टाइम मेरा आउटस्टैंडिंग क्या है। यहाँ पे अगर कोई सीए हो जो बुक्स को साइंटिफिकली रिकॉर्ड करे, कायदे से काम करे, अपने एम्प्लॉइज में डिसिप्लिन लाए, तो सडनली स्कोप पूरा चेंज हो जाता है। सो वी वर एबल टू गिव देम accurate receivable reports and payable reports to SSCI. So कोलैबोरेशन आप करना चाहें तो बहुत इजीली कर सकते हैं। एक और जगह पे जहाँ पे हमको कोलैबोरेशन का बहुत बड़ा स्कोप दिखता है वो है आपका Amazon। अगर आप ई कॉमर्स कंपनियों में काम करते हैं, आप जैसे हमारे पास एक नूडल स्टोरी करके जो क्लाइंट है हमारी, वो नूडल्स बेचते हैं और उनकी स्विगी की कभी भी रिकंसाइल होती नहीं है उनसे, उन्होंने स्विगी की रिकंसिलिएशन हमको करने बोला है। Amazon के पे आउट्स एक्यूरेट है कि नहीं है, स्टॉक एक्यूरेट है कि नहीं है, आप ये एक्सपर्ट्स को पकड़ा सकते हैं। तो सडनली आपके जो ऑफिस के बंदे हैं उन लोग लो लेवल डेटा एंट्री कर सकते हैं, और जहाँ पे थोड़ा हायर लेवल रिकंसिलिएशन की दरकार है आप उसको इजीली एक्सपर्ट्स को आप ला के आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। जो लोग को अकाउंटेंट नहीं मिल रहा है, आपको अकाउंटेंट शायद रखने का दरकार भी ना पड़े, आप पूरी अकाउंटिंग की जो जॉब है आप अपने सीए को आउटसोर्स कर सकते हैं। तो this is enabled because of the feature of documents being online, and this is a very unique feature that we have, that collaboration is possible. Suddenly हमको फंसना नहीं है। अगर आपके ऑफिस से बंदे नहीं आ रहे हैं, अपने सीए को बोल दीजिए, उनके डेटा एंट्री के लोग आप उनके घर से बैठ के आपकी डेटा एंट्री कर सकते हैं। तो हमारे जितने भी क्लाइंट्स हमारे जो है जो हमारे से सर्विसेज लेते हैं अकाउंटिंग सर्विसेज, उनकी कोई भी की भी काम इस लॉक इन में रुकी नहीं। सबके एक महीना, जब मार्च के महीना में, अप्रैल के महीना में जब बिजनेसेस बहुत कम हो रही थी, तो हमने सबकी बुक क्लोजर की एक्टिविटी पे काम करना शुरू कर दिया। हमारे सारे के सारे 60 पीपल ऑनलाइन अवेलेबल थे और उन्होंने डेटा एंट्री किया, बुक्स को रिव्यू किया और बुक्स का प्रॉपर क्लोजर कर दिया, बिकॉज ऑल द डॉक्यूमेंट्स, ऑल द एंट्रीज वर ऑनलाइन। एंड लॉकडाउन बड़ा सडनली हुआ था, तो ऐसा भी नहीं कि कोई आदमी इसके लिए प्रिपेयर कर सकता था। इट वाज जस्ट नॉट पॉसिबल फॉर यू टू प्रिपेयर कि हम ओके हम बुक्स को घर पे लेके जाएंगे। वन फाइन डे मोदी जी आए, बोले कि कल से लॉकडाउन है। नो, nobody really had the time to prepare for it, but because हमारा सिस्टम इनबिल्ट है, we were able to continue working even if because of the lockdown. Now obviously अगर ऑनलाइन जाता है कोई भी बुक्स, या आप कंट्रोल, आप जब एक्सपर्ट से आप शेयर करते हैं अपने डेटा, आप अपने डेटा और सीए वाले जब शेयर करेंगे अपने आर्टिकल से, अपने डेटा एंट्री के बंदों से, तो एक क्वेश्चन आता है कि जब मेरा डेटा हर जगह स्प्रेड हो रहा है तो कंट्रोल क्या है। तो हमने कंट्रोल्स पे काफी काम किया है। आप रियल बुक्स को आईपी लेवल पे सिक्योर कर सकते हैं, आप रोल बेस्ड आप एक्सेस दे सकते हैं। आई विल शो यू, ये यूजर्स का लिस्टिंग है हमारा यूजर पेज का, आप कौन सी यूजर को कितना बैकडेटेड एंट्री एडिट देना चाहते हैं, आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। यूजर का लॉगिन, कौन सा यूजर आपका काम कर रहा है, ग्रीन बटन, कौन सा यूजर आपका लॉक्ड आउट है, ये दिख जाता है यहाँ पे। कौन सी यूजर को आप क्या पेज दिखाना चाहते हैं, वो यहाँ पे रह जाता है आपका परमिशंस में। आप क्या आईपी से उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। जीरो मतलब दिस पर्सन नीरज में हुआ, तो मैं अपने बुक्स को कहीं से भी एक्सेस कर सकता हूँ। बट अगर आप किसी को यहाँ पे रोकना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 19.230 उसकी स्टैटिक आईपी लेके आप, या टेम्पररी आईपी लेके आप उसको लॉक कर सकते हैं। तो वो केवल अपने ऑफिस से या अपने घर से दिस सिस्टम को एक्सेस कर पाएगा, हर जगह से एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो एक इनबिल्ट सिक्योरिटी आ जाती है कि आपकी सिस्टम कंप्लीटली ओपन नहीं है। इसके बाद भी आप क्या कर सकते हैं, अपने पेजेस की एक्सेस आप दे सकते हैं, कौन सा पेज किसको क्या, कितना बैकडेटेड एंट्री है, कितना लिमिटेड एंट्री है, लेजर कौन सा दिखाना है या सिर्फ डेटास दिखाना है, क्या कौन सा परमिशन रोल है, व्यू एक्सेस है कि ऑल एक्सेस है, रोल्स डिफाइन करके आप लोगों को परमिशन दे सकते हैं। तो परमिशन पे हमने काफी काम किया है। जैसे हमने देखा लॉक, आप बैकडेटेड एंट्री कोई करेंगे तो अपने आप लॉक हो जाता है, तो हमारे पास लॉकिंग फीचर्स भी बहुत है। अगर आपकी कोई बिल टैग हो चुकी है तो उसको एडिट नहीं होना चाहिए, तो वो सारे लॉकिंग फीचर्स। अगर आपकी कोई बीआरएस हो चुकी है तो बीआरएस बैंक रिकंसाइल हो चुकी है तो उस एंट्री को एडिट नहीं होना चाहिए, तो वो लॉक हो जाता है हमारा। तो सीएस भी क्या बड़े कॉन्फिडेंस के साथ सर्विस दे सकते हैं कोलैबोरेशन एनवायरनमेंट में, या आप अपने बुक्स पे कॉन्फिडेंस रख सकते हैं
कि रियल बुक्स आपको अलाउ ही नहीं करेगा अगर मेरा बीआरएस मैच हो चुका है। तो बिजनेसमैन आराम से सोच सकते हैं अगर मेरा बैंक मैच है तो लोग डेटा एंट्री गलत उसको फिर एडिट नहीं कर सकते हैं। आई एम सेफ एंड सिक्योर। और कोई भी एंट्री को अगर एडिट करता है बंदा तो आपको उसका इमीडिएटली नोटिफिकेशन मिल सकता है। तो अगर आपको देखना है कि मेरे बंदे कोई ऑफिस में एंट्रीज डिलीट कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं, तो आपको एक ईमेल फायर हो जाएगा सो दैट यू हैव कंट्रोल कि आपके बुक्स प्रॉपर्ली एंड राइट वे में एक्सेस है कि नहीं है उनका। So these are some of the control features that we have, and we also have approval systems. तो अगर कोई डेटा एंट्री कर रहा है और आपको उससे कॉन्फिडेंस किसी को ट्रेन करना चाहते हैं, एक बंदा नया आया है उसको टीडीएस की एंट्री से मिस्टेक कर रहा है वो, तो आप इसका एक अप्रूवल वर्कफ्लो में आप क्या कर सकते हैं, जब जब ये बंदा मेरा टीडीएस का एंट्री करेगा तब तब उसका अप्रूवल मेरे ऊपर फायर हो जाना चाहिए। तो यू कैन ऑल्सो ट्रेन पीपल ऑन अ रियल टाइम बेसिस। ये हमने इसको यूज किया था एंड बड़ा अच्छा रिजल्ट मिला हमारे को इस पे। सो आप अप्रूवल्स को यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं कि जब मेरा बंदा कोई पेमेंट कर रहा है 20,000 से ऊपर तो बॉस के पास जाना चाहिए, एचआर के पास जाना चाहिए। मेरा अगर कोई बंदा लेजर ग्रुप में टीडीएस का एंट्री कर रहा है तो उसका कोई टीडीएस का एंट्री कर रहा है तो उसका अमाउंट कुछ भी हो वो मेरे पास फायर हो जाना चाहिए क्योंकि टीडीएस का गलती करता है वो राइट है कि रॉन्ग। तो आपके पास वो ईमेल आ जाएगा, आपको सिस्टम में लॉगिन भी नहीं करना पड़ेगा और उसका डेटा एंट्री आपको दिख जाएगा। तो पूरा आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन सिस्टम बनाया हुआ है इसमें। Okay, so these are the control measures we have for training and for guarding real books. So मैं फिर से हम लोग यहाँ पे रिपीट करें हम लोग ने क्या क्या चीज कवर किया है। रियल बुक्स कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनीवेयर, इट कैन बी एक्सेस्ड एनी टाइम। आप टाइम के आगे पीछे जा सकते हैं। आपको कोलैबोरेशन का एनवायरनमेंट मिलता है, कंसोलिडेशन का एनवायरनमेंट मिलता है, तो मल्टीपल लोकेशंस के अगर आपकी बुक्स आप कंसोलिडेट कर सकते हैं। कंप्लायंसेस इनबिल्ट हैं, आप कोलैबोरेट कर सकते हैं और आपके पास अच्छी कंट्रोल्स हैं क्योंकि जब आप कोलैबोरेट करेंगे तो आपको अच्छी कंट्रोल्स चाहिएगी। Some of the modules that we have built within RealBooks is we have a full-fledged accounting system with cost center, bill tracking, multi-branch, multi-company. हमारी inventory systems है with order management, batch management, BOMs, manufacturing journals. Payroll system बनाई हुई है हमारी। स्कूलों के लिए जैसे SSCI एक दीक्षा लर्निंग के लिए हमने सब्सक्रिप्शन एंड फीस हैंडलिंग सिस्टम बनाई। तो अगर आपकी स्कूल है और आपको फीस की हैंडलिंग करनी है वो पॉसिबल है कोचिंग सेंटर्स के लिए। हमारे पास फिक्स एसेट रजिस्टर है। ऑटो सेक्टर में हमको काफी माइलेज मिला है, हमने ऑटोमोबाइल्स के लिए स्पेसिफिकली उनकी कमीशन ट्रैकिंग, इंश्योरेंस ट्रैकिंग बनाई गया। हमारे पास एक दुबई से बहुत बड़ी कंपनी आई ट्रैवल के लिए, बुकिंग्स के लिए, तो हमने उनके लिए बुकिंग का सिस्टम बनाया व्हिच इज वी मेड इट इन अ वे व्हिच अदर पीपल कैन आल्सो यूज। एंड हमारे पास फंड हैंडलिंग के लिए, पीईज एंड वीसीज के हैंडलिंग के लिए भी सिस्टम है। सो इतने सारे हमारे अलग अलग मॉड्यूल्स भी अवेलेबल हैं। नाउ क्वेश्चन आता है कि अब आप माइग्रेट कैसे करेंगे। तो अगर आप टैली पे हैं या आप अगर कोई भी और सॉफ्टवेयर में है, हमारे पास एक्सेल अपलोड्स की सिस्टम है और टैली को तो आप एज इज एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक्सएमएल फॉर्मेट में और रियल बुक्स उसको इंपोर्ट कर लेती है। तो इसका एडवांटेज क्या होता है कि आप ड्यूरिंग द ईयर, मिड ऑफ द ईयर भी अगर आप टैली को एक्सपोर्ट करके रियल बुक्स बनाना चाहेंगे तो आप ला सकते हैं। तो क्लाइंट को ऐसा नहीं है कि साल के पहले ही शुरुआत करनी है। आप हो सकता है कि सितंबर में कोई बुक्स को लाएं और अप्रैल टू सितंबर टैली के डेटा इंपोर्ट हो गए रियल बुक्स में और फिर वहां से आपने कंटिन्यू करना शुरू किया अपना काम। अब टैली से रियल बुक्स में आना या रियल बुक से टैली में जाना, हमने दोनों को फैसिलिटी दिया है। हम नहीं चाहते हैं कि आप ऐसा फील करें कि आप हमारे पास आए तो लॉकडाउन हो गए हैं आप। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि रियल बुक्स आपको सूट नहीं कर रहा है और आप डेटा एंट्री यहाँ लाके आपको तकलीफ हो रही है, आप ऑलवेज अपने डेटा को एक्सपोर्ट करके वापस से टैली फॉर्मेट में ले जाके टैली में अपने काम को आप शुरू कर सकते हैं। तो अब टैली से लाना और ले जाना दोनों काम रियल बुक के साथ बड़ा आसानी से बनाया हुआ है। हमारे पास काफी एक्सेल टूल्स है, पाइथन टूल्स हैं, यहाँ पे आप बड़े बड़े डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपकी टैली में सॉफ्टवेयर नहीं है, कोई और सॉफ्टवेयर आप चलाना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है क्योंकि वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लिक ऑफ अ बटन नहीं है, और आप उस डेटा को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। Okay, so one of the last slides, then we can open up for the Q&A. Some of the clients that include are education में SSEI, Captain Steel, Captain TMT Bars, Hyundai, Advait Motors, Bombay की Bangalore की company है. They claim that they are the largest dealers in the world for Hyundai. They are very large dealers, 54 locations है, उनकी काम है हमारे पास. Diksha Learning, Bonita, Ratnabali Group.
These are some of the larger companies we have, but that does not mean कि छोटे companies लोग अपना काम नहीं कर सकते हैं. We can always have a single person coming in and using the system with all the features being kept quiet. तो हर चीज का हमारा सेटिंग है. आप सेटिंग को ऑफ कर दीजिए तो सिस्टम बड़ा आप एकदम सिंप्लीफाइड सिस्टम में आप यूज कर सकते हैं इसको. ये सारे मॉड्यूल्स को आप ऑफ कर दीजिए. हमको इन्वेंटरी नहीं चाहिए, डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, वर्कफ्लो नहीं चाहिए, शेड्यूलिंग नहीं चाहिए, मैपिंग नहीं चाहिए, सिर्फ सिंपल अकाउंटिंग चाहिए. आप खाली सिर्फ अकाउंट्स को मेंटेन कर सकते हैं यहाँ पे. तो इन दैट सेंस बड़ा आप इसको बड़े सिंपल तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर आप एक एक फीचर को इसको ऐड भी कर सकते हैं जैसे जैसे आपकी कंपनी बड़ी होती है. Some of the concerns that you may have, डेटा सिक्योर है क्या? क्योंकि हमारे पास डेटा नहीं है, अकाउंटिंग डेटा, टैली की डेटा या अकाउंटिंग डेटा हमारे प्रीमाइसेस पे रहती है. जैसा हमने कहा पूरे वर्ल्ड अब AWS से मूव कर रहा है. बड़ी बड़ी कंपनी अपने सारे सर्वर्स डेटा AWS पे रखते हैं. गवर्नमेंट ऑफ US भी अपने डेटा सेंटर्स को AWS एंड Azure एंड गूगल पे बना रहे हैं. तो इन दैट सेंस इन दीज 3 कंपनीज आर गारंटीइंग कि आपकी डेटा एक सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में रहती है. क्योंकि डेटा सेंटर हमारे ऑफिस में नहीं है, तो हमारे ऑफिस के कोई भी बंदे को डेटा फिजिकल सर्वर को एक्सेस करने की परमिशन है ही नहीं, क्योंकि सर्वर भी हमारे पास नहीं है. फिर आ जाती है कॉन्फिडेंशियलिटी की बात कि आपकी डेटा किसी थर्ड पार्टी सर्वर सॉफ्टवेयर वेंडर के पास है. तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन रहता है कि 2 चीज रहता है क्वेश्चन. ऐसे भी आप अपना सॉफ्टवेयर टैली को दे के रखे हैं, और जब भी आपको टैली वाले पर्सन से आपको कोई हेल्प चाहिए तो टैली वाले बंदे को बुलाते ही हैं आप, और उसको डेटा को सॉफ्टवेयर को दिखाते ही हैं आप. तो टैली वाले के पास भी अगर आप जब टैली की जो ऑनलाइन फीचर है उसको यूज करते हैं तो आपका जो टैली का डेटा उसके सॉफ्टवेयर के थ्रू ही रूट होता है, सर्वर के थ्रू. तो एक वेंडर इन दैट सेंस जो आपका डेटा हैंडल कर रहा है टू अ सर्टेन एक्सटेंट सिर्फ कंपनी के पास है. और हमने क्या करके रखा है कि आपकी जो मेन डेटाबेस है उसको कोई को भी एक्सेस देके नहीं रखा है. तो अगर आपको कंपनी में लॉगिन करके मुझे देखना है तो मुझे आपसे लॉगिन यूजर नेम पासवर्ड मांगना पड़ेगा. आई डोंट हैव एक्सेस टू योर डेटा अदरवाइज. तो खाली एक डेटाबेस का बंदा, जो मेरा डेटाबेस का 1-2 बंदे हैं जो काम कर रहे हैं, जिसको डेटा को सपोर्ट देना पड़ता है, खाली उन 1-2 बंदों के पास डेटा का एक्सेस रहता है. उन लोग आईटी बैकग्राउंड से हैं, उन लोग कंपनी बैकग्राउंड से हैं ही नहीं. तो वहां पे आपका डेटा बहुत ही सिक्योर्ड एंड कॉन्फिडेंशियल रहता है. यूजेबिलिटी जैसे हमने कहा, जहां तक हो सके हमने टैली का यूजेबिलिटी की जैसा बनाया है, तो बंदे आपको इजीली मिल जाएंगे, ट्रेनिंग एक्स्ट्रा की दरकार नहीं पड़ेगी आपको. अगर आप डेटा एंट्री का स्क्रीन देखना चाहेंगे यहाँ पे, तो आप देखेंगे अगर डेटा एंट्री, तो ये जैसे टैली, इसको आप बंद भी कर सकते हैं स्क्रीन को. तो जैसे टैली का बनाया हुआ है यहाँ पे, नीरज कुमार जैन 1000 कैश, ऐसे करके आप एंट्री कर सकते हैं. टैब एंटर. सो दिस इज अ वेरी सिंपल वे ऑफ डूइंग डेटा एंट्री. सो डेटा एंट्री वालों को, जो लोग आपको जो बंदे अगर हायर करने हैं जो टैली यूज कर सकता है, वो इस रियल बुक को आसानी से यूज कर सकता है. तो ट्रेनिंग का आपका बहुत कॉस्ट बच जाता है. अगर आप लार्ज सेटअप हैं तो लार्ज सेटअप के लिए आपको ऑब्वियसली प्रोफेशनल की दरकार पड़ेगी जो आपके बुक्स को और रियल बुक्स को प्रॉपर्ली सेटअप कर सके. टू दैट एक्सटेंट आपको ट्रेनिंग एंड हेल्प की दरकार पड़ेगी. एंड क्योंकि ऑनलाइन है, कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं कनेक्टिविटी. पिछले 3 महीने में हम लोग को जो चलाया है वो कनेक्टिविटी ही चलाया है. आज के दिन पे कनेक्टिविटी इज नॉट अ चैलेंज. जियो के आने से डेटा इज फ्रीली अवेलेबल नाउ. 4G पे सब कुछ चल जाता है. इनफैक्ट ये जो जूम सेशन आप देख रहे हैं और ये जो मेरा रियल बुक्स चल रहा है, ये एज ऑफ नाउ मैं इसको जियो के 4G पे चला रहा हूँ. सो दैट इज द काइंड ऑफ कनेक्टिविटी वी हैव टुडे. सो 5 साल पहले लोग हमसे ये पूछते थे कि आप ऑनलाइन रख रहे हैं, इंटरनेट नहीं मिलेगा तो क्या होगा. बट आज के डेट पे ये क्वेश्चन आई थिंक सॉल्व हो गया है बिकॉज ऑफ द connectivity that we have available today, and Jio is available and Airtel is available in almost all locations. So this, हमने एक स्पेशल ऑफर निकाल के रखा है आप लोगों के लिए. लिमिटेड है 31 अगस्त तक. अगर आप रजिस्टर करते हो, कंपनी को यूज करना चाहते हैं, सिंगल यूजर के लिए हम उसको फ्री दे रहे हैं फॉर 1 year. So that's what it is. So मैं समराइज करता हूँ हमने क्या क्या डिस्कस किया. रियल बुक्स आपको क्या एम्पावर करता है, कैसे आप अपने बुक्स को कभी भी कहीं भी देख सकते हैं. आपके अगर 2 लोकेशंस है तो आप उसको इजीली कंसोलिडेट कर सकते हैं.
कंप्लायंसेस की फीचर पूरी इनबिल्ट है। आप अगर कहीं फंस गए तो आप अपने फ्रेंड्स के, अपने सीएस के साथ, एक्सपर्ट के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। आपकी कोलैबोरेशन जहां आएगा तो कंट्रोल्स चाहिएगा, हाईली आपके कंट्रोल फीचर्स पूरे सिस्टम में ऑलरेडी बनाए हुए हैं। आपको कभी भी रियल बुक्स के अंदर आना है, माइग्रेशन आसान है। रियल बुक से बाहर जाना है, आपको लग रहा है कि नहीं सूट कर रहा है आपको, आप यहाँ से बाहर इजीली माइग्रेट भी कर सकते हैं। So some of these are some of the benefits which you can get from real books. हमारा सिर्फ ऑनलाइन है, ऑफलाइन एप्लीकेशन नहीं है, but we feel that being online is a blessing. That's what we feel. And ये इस लॉकडाउन में और इस में बहुत ज्यादा हम लोग को इस बात की इम्पोर्टेंस समझ में आई है, और भी ज्यादा। So thank you very much. I have come to the end of my session on real books. आपकी अगर कोई questions हैं तो you can always ask.